নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে আবেলিৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি অসম মিজোৰাম সীমান্ত বিবাদক লৈ সচিব পৰ্যায়ৰ যি বৈঠক হেয়া বিফল হৈছে আৰু সীমান্ত সমস্যা লৈ কোনো আলোচনা হোৱা নাই এই বৈঠকত গৃহ বিভাগৰ সচিব জ্ঞানেন্দ্ৰ ত্ৰিপাঠীয়ে জনাইছে এই বিষয়ে মিজোৰামলৈ ট্ৰাক প্ৰেৰণৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে বৈঠকত যেহেতু ট্ৰাক প্ৰেৰণ কৰা নকৰাক লৈ এটা দুধুৰ-মুধুৰ আছিল আৰু গোটেই বিষয়টো আলোচনা কৰা হৈছে আজি কিন্তু সীমান্ত সমস্যা সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই বিবাদ সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই আৰু অসম মিজোৰাম সীমান্তত এটা চেপা উত্তেজনা এতিয়া বিৰাজমান এটা চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰশাসনিক পৰ্যায়ত বৈঠক হৈছে অসম মিজোৰাম সীমা বিবাদক লৈ সচিব পৰ্যায়ৰ যি শেহতীয়া বৈঠক হেয়া বিফল হৈছে আৰু সীমান্ত সমস্যাক লৈ কোনো আলোচনাই হোৱা নাই আচলতে বৈঠকত গৃহ বিভাগৰ সচিব জ্ঞানেন্দ্ৰ ত্ৰিপাঠীয়ে এই বিষয়ে জনাইছে কিন্তু মিজোৰামলৈ ট্ৰাক প্ৰেৰণৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰা হৈছে বৈঠকত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কুমাৰ সঞ্জিত কৃষ্ণক পুনৰ জিম্মাত নিবিচাৰিলে চিআইডিয়ে সৰোজ শৰ্মা আৰু জয়দীপ বৰুৱাকো ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে এছআই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সঞ্জিত কৃষ্ণ সৰোজ শৰ্মা জয়দীপ বৰুৱা আৰু আনহাতে অলকেশ বৈশ্যৰ জামিন আবেদন খাৰিজ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল অলকেশ বৈশ্যই থেংক ইউ লজৰ স্বত্বাধিকাৰী অলকেশ বৈশ্য ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অলকেশ বৈশ্যক আৰু অলকেশ বৈশ্যৰ যি আবেদন খাৰিজ কৰিছে জামিন আবেদন আনহাতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কুমাৰ সঞ্জিত কৃষ্ণক পুনৰ জিম্মাত নিবিচাৰিলে চিআইডিয়ে সৰোজ শৰ্মা আৰু জয়দীপ বৰুৱাকো ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এছআই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সঞ্জিত কৃষ্ণ সৰোজ শৰ্মা আৰু জয়দীপ বৰুৱা অলকেশ বৈশ্যৰ জামিন আবেদন খাৰিজ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল অলকেশ বৈশ্যই থেংক ইউ লজৰ স্বত্বাধিকাৰী অলকেশ বৈশ্য তেজপুৰত এটা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এগৰাকী দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই থৈ গ'ল বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত বাইক আৰোহী মেছেৰ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে নিহত মেছেৰৰ ঘৰ হৈছে গোটেলুঙত দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা ডাম্পাৰ চালকে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে কিন্তু ৰাইজে খেদি খেদি ডাম্পাৰসহ আটক কৰে চালকক আৰু পৰুৱা ৰয়েল আৱাস এপাৰ্টমেণ্টৰ সন্মুখতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যত ডাম্পার পায় রাইজে জ্বলাই দিব লাগে ডাম্পার রাখিব না লাগে ডাম্পারে বহুত মানুষ আমার মানে আঘাত দি দিছে ডাম্পার জ্বলাই দিব লাগে যতে পায় ডাম্পার জ্বলাই দিব লাগে ডাম্পার রাইজে জ্বলাই দিব লাগে ডাম্পার সুখে বুকে যত রাইজ দেখে তাতে গৈ ডাম্পারে এক্সিডেন্ট কৰে দেখিছো স্পট ডেট মাথাত উঠাই দিছে ডাম্পারটো ইমান ৰখাইছে চিঞৰিছো ডাম্পারটো নৰখে কি হল এনেকা কৈছে ডাম্পারে এইটো ৰোডত মানে ইউনিভাৰ্চিটি ৰোডত যিমান চলে খুব স্পীড চলে সিহঁতে মানে মানুহ গৰু একো নেচায় মানে যদে মদে চলে আৰু মদ পানী খায়ও মানে ইহঁতে চলায় দিনে ৰাতি বদৰুদ্দিন আজমল কেতিয়াও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় মন্তব্য কৰিছে এআইইউডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীয়ে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰাটো উচিত হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীয়ে আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আজমলে নকৰে বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে এআইইউডিএফে পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰিছে দলৰ সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে বিজেপিক গাদিচ্যুত কৰাৰ স্বাৰ্থতে কিন্তু বিৰোধীক একগোট হোৱাৰো আহ্বান জনাইছে লগতে খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ নিউজ ফ্ল্যাশ আগবঢ়াইছে অজন্তা শুজ এইটো সপ্তাহৰ দাদাৰ পছন্দ অজন্তা শুজ স্ট্রং মানে জানেনে মাইথন স্ট্রং মানে মাইথন নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড কামিগাঁও আগবঢ়াইছে আনমোল মাৰি প্লাছ সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ नमस्कार इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूं जया सिन्हा मेरे साथ हैं सोनिया और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देशवासियों से कोरोना वायरस का टीका आने तक ढिलाई नहीं बरतने की अपील की त्योहारों के मौसम में अधिक सावधानी बरतने को कहा पीएम ने कहा वो प्रत्येक भारतीय को देखना चाहते हैं सुरक्षित
पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वैक्सीन के बनने पर देश के हर एक नागरिक तक उसको पहुंचाने के लिए सरकार कर रही है हर संभव तैयारी। महामारी को नियंत्रित करने में देश के प्रयासों की सराहना की। आज पुलिस स्मृति दिवस है। मातृभूमि और देशवासियों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले पुलिस के रणबांकुरों को याद करने का दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड में होंगे मुख्य अतिथि। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। राज्य में प्रचार अभियान चरम पर, कई भाजपा नेताओं की आज चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र और लोक जनशक्ति पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट भी आज होगा जारी। बिहार में चुनाव से पहले कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम करेगी राज्य का दौरा। चुनावी रैलियों के दौरान होने वाली भीड़ के कारण कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सुझाएगी उपाय। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विस्कॉन्सिन, यूटा और हवाई में शुरुआती वोटिंग जारी। चुनाव से 2 हफ्ते पहले तक देश में डाले जा चुके हैं 3 करोड़ 40 लाख से अधिक वोट। ओपिनियन पोल्स में फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में ट्रंप और बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान। और नासा को मिली एक बड़ी सफलता। अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स ने पृथ्वी से 10 करोड़ मील से अधिक दूर चक्कर काट रहे क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूने इकट्ठा किए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सफलता से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का पता लगाने में मिल सकती है मदद। और आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बार फिर कोरोना से सावधान और सतर्क रहने का आह्वान किया है। मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं, लेकिन हम सबको अभी पूरी तरह सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वायरस अभी तक नहीं गया है। पीएम ने देशवासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, ईद, छठ आदि की बधाई तो दी ही, साथ ही आगाह भी किया कि त्योहारों के मौसम में कोरोना का खतरा ज्यादा है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों को ये बताया कि वैक्सीन के बनने पर देश के हर एक नागरिक तक उसको पहुंचाने के लिए सरकार की तैयारी तेज है। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन ही मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भारतवासियों की सुरक्षा और स्वस्थ जीवन ही मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से बात कही। कोरोना के विरुद्ध इस जंग में भी देशवासियों के जीवन को बचाना ही मोदी सरकार ने अपना परम कर्तव्य माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस संकल्प को पुनः दोहराया।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री जी के आग्रह को अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि ये समय लापरवाह होने का नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम जहां देश की जनता को कोरोना के खतरों के प्रति आगाह करता है, वहीं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त भी करता है कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार है और हर संभव तैयारी भी कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को अहम बताते हुए कहा कि ये देशवासियों के लिए एक मार्गदर्शक है। आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन देशवासियों का एक हितचिंतक और एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत अहम है। उन्होंने फिर से ये एम्फोसिस किया कि भी सावधानी की जरूरत है, ढिलाई नहीं बरतनी है। मास्क, सुरक्षित दूरी और उसके साथ साथ बारंबार हाथ धोना। अब त्योहारों का समय है, लेकिन त्योहारों को भी ढंग से मनाएंगे, लेकिन सुरक्षित दूरी और मास्क पहनकर मनाएंगे, भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। जैसे वैक्सीन आएगी जल्दी से जल्दी सभी जरूरतमंदों पर तक पहुंचेगी, इसके लिए एक यंत्रणा तैयार हो रही है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज पुलिस स्मृति दिवस है। मातृभूमि और देशवासियों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिस के रणबांकुरों को याद करने का दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। हर साल 21 अक्टूबर को मनाए जाने वाले पुलिस स्मृति दिवस की शुरुआत के पीछे भारत और चीन के बीच सीमा पर पनपे हिंसक तनाव की कहानी है। हालांकि इसे आजादी के बाद ड्यूटी पर जाने देने वाले 34,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है। दरअसल 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की 3री बटालियन की एक कंपनी को भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में हॉट स्प्रिंग में तैनात किया गया था। जब बल के जवानों का गश्ती दल हॉट स्प्रिंग में गश्त कर रहा था, तभी चीनी फौज के एक बहुत बड़े दस्ते ने इस गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर आक्रमण कर दिया। तब सीआरपीएफ की उस छोटी सी टुकड़ी ने चीनी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए 10 शूरवीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम सबके लिए ये गौरव की बात है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इन बहादुर जवानों के बलिदान को देश के सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों व सभी राज्यों की सिविल पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो सरगर्मियां अपने जोरों पर हैं। आज तीसरे चरण और अंतिम चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही महागठबंधन में शामिल प्रमुख घटक दल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं लोजपा आज अपना बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेगी। तीसरे और अंतिम चरण के लिए कल 78 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। तीसरे चरण में 15 जिलों में 78 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव के दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए कल नाम वापसी के आखिरी दिन 1464 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। 17 जिलों के निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार में चुनाव से पहले कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम राज्य का दौरा करेगी। केंद्रीय दल चुनावी रैलियों के दौरान होने वाली भीड़ के कारण कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार को उपाय सुझाएगी। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र और मौसम विभाग ने बेंगलुरु, मैसूरू, रामनगरम, चेन्नापटना और दक्षिण कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बेंगलुरु में भारी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार शाम से शहर में 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है।
पूर्वानुमान के अनुसार बारिश आज तक भी जारी रहने की संभावना है। मैसूर में मंगलवार को भारी बारिश हुई। उत्तर कर्नाटक क्षेत्र पिछले सप्ताह से भारी वर्षा से प्रभावित है और 6 से अधिक जिले बाढ़ प्रभावित हैं। कलबुर्गी, रायचूर, बीजापुर, बेलगाम सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं, जहां एनडीआरएफ बचाव एवं राहत अभियान में जुटा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आज बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए उत्तर कर्नाटक के जिलों में हवाई सर्वेक्षण करेंगे। कोविड-19 के खिलाफ अपनी जंग में भारत हर रोज एक नया कदम मजबूती से रख रहा है। करीब 3 महीनों के बाद पहली बार पिछले 24 घंटों में नए संक्रमित मामलों की संख्या 50,000 से कम 46,790 हो गई है। 28 जुलाई को नए मामले 47,703 थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैक्सीन के मोर्चे पर भी तेजी से काम हो रहा है। हालांकि संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना अब भी सबसे जरूरी उपाय है। वैक्सीन की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वैक्सीन देने का प्लान बन गया है। जनवरी से जुलाई तक किनको वैक्सीन दी जाएगी, कितने डोज में दी जाएगी, इन सब पर विचार हो रहा है। और सक्रिय मामलों की संख्या में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। प्रति मिलियन जनसंख्या पर भारत में 310 मामले हैं, जो कि दुनिया के दूसरे देशों से कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7,48,538 रह गई है। सक्रिय मामलों में गिरावट के अलावा ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 67 लाख को पार कर चुकी है। राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 88.63% हो गई है। ठीक हुए नए रोगियों में से 78% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। कोरोना के खिलाफ मृत्यु दर 1% से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। टेस्ट भी तेजी से हो रहे हैं। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना का दोबारा संक्रमण हो सकता है, इसलिए मास्क लगाएं, दूरी का पालन करें। मंत्रालय के मुताबिक ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए समुचित उपाय किए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने CSIR की क्लिनिकल ट्रायल पोर्टल क्योर्ड का शुभारंभ किया। इसकी सहायता से देश भर में कोरोना-19 सहित विभिन्न क्लिनिकल ट्रायल की वर्तमान स्थिति को लाइव ट्रैक किया जा सकेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए आज विस्कॉन्सिन, यूटाह और हवाई में शुरुआती वोटिंग जारी है। अब तक 3 करोड़ 40 लाख से अधिक अमेरिकी नागरिक मतदान कर चुके हैं। ओपिनियन पोल्स में फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में ट्रंप और बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान है। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनावों में माइक पेंस और कमला हैरिस आमने सामने हैं। नासा को एक बड़ी सफलता मिली है। नासा के एक अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स ने पृथ्वी से 10 करोड़ मील से अधिक दूर चक्कर काट रहे क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूने इकट्ठा किए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सफलता से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का पता लगाने में मदद मिल सकती है। बेनू स्याह कचरे का ढेर है, जो धरती से 29 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। करीब 550 मीटर व्यास का बेनू अगले 150 साल में धरती के बेहद करीब पहुंच सकता है। भले ही उस समय धरती से टक्कर का जोखिम बहुत कम है, लेकिन नासा इस ग्रह को इस समय सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह मान रहा है। ओसिरिस रेक्स को 2016 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और वह बड़े वैन के आकार का है। उसे बेनू तक पहुंचने में 2 साल लगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन याद रहे कि 2 गज दूरी बेहद जरूरी और आप अपने मुंह और नाक को हमेशा ढक कर रखें। नमस्कार।